Before starting this video, imagine this with me. You take a mock, you click on the submit button, you get the scores. These are not the scores that you wanted. You feel upset for an hour and then you promise yourself to work harder the next time. ये कहानी सुनी सुनी लग रही है? I think you all are exactly doing this. But I'm sorry to warn you बच्चों, this is the single biggest mistake that you're doing in your CLAT prep. Mocks are lying to you. It's just a number बच्चों. But the real gold, the actual ticket to your NLU seat is inside the mock. What you analyze inside of the mock is going to make the difference whether or not you will clear the exam this very year or you will have to sit through one more year and take the exam next year. बट मैं समझ सकती हूँ मॉक एनालिसिस या तो आपको बहुत बोरिंग लगता होगा या इतना टीडियस टास्क लगता होगा बिकॉज यू हैव टू मेक एन एक्सेल शीट, बहुत सारा डेटा लिखना पड़ता होगा, इतना एनालाइज कौन करेगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली यू एंड अप ईदर नॉट डूइंग इट और डूइंग इट वेरी पुअरली. But let me tell you that in this video, everyone, I am going to give you the simplest 3-step method that you can use for every single mock that you take till the exam. And this is going to help you increase your score from every mock you move ahead with. So before diving deep into the video, I will have to tell you that मेरे पास एक बहुत सिंपल मॉक एनालिसिस शीट है जो बहुत सोच समझ के एक इजी मेथड को फॉलो करके मैंने बनाई है और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है. वो कुछ इस तरह की दिखती है जिसको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस भी करने वाली हूँ. सो अगर आपको भी ये मॉक एनालिसिस शीट फ्री में चाहिए और फ्री मॉक्स भी चाहिए बिकॉज आई एम गिविंग दोज एज वेल, देन सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड जॉइन माई व्हाट्सएप क्लैट प्रिपरेशन ग्रुप. आई एम शेयरिंग दिस मॉक एनालिसिस शीट विद एवरीवन for free of cost. You can also take it बच्चों, and not just that, I do come up with a lot of live sessions, so please take benefit out of it. And with that, I hope कि तुमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा अब तक. Let's get started with the simple 3-step method for the easiest mock analysis you've ever seen. So, जिस मॉक एनालिसिस मेथड की मैं बात कर रही हूं उसको हम शॉर्ट में कहते हैं द सी मेथड, विच इज SEA. दिस मीन्स S is for scan, E is for examine and A is for act. सिर्फ इन 3 चीजों की आपको जरूरत होती है for a perfect mock analysis. Now let's break them down one by one and I will tell you what you exactly need to do in every single step. Now the first step बच्चों is scan. So even before you get up finally after you have taken the mock for the 2 hours, ये step आपको उठने से पहले ही करना है. आपको एक ओवरऑल डेटा कलेक्ट करना है अपने मॉक का. दिस मीन्स बच्चों की एक इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस आपको करना है जहां पे आपके स्कोर्स, टोटल स्कोर्स, आपके हर सेक्शन के कितने स्कोर आए हैं, आपके करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. अभी आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना है, आपको अपने आप को शूट अप नहीं करना है विद अ लॉट ऑफ फेलियर्स कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने फिर ये गड़बड़ कर दी. नॉट दैट. सबसे पहले आपको करना है स्कैन. This quick scan will actually give you the data जिस पे आपको आगे काम करना है in the upcoming steps. Basically बच्चों, mock analysis is nothing. It is understanding what you have done throughout your mock. And unless you have the right data to depend upon, I really don't know तुम analysis करोगे भी कैसे. So first step, as I'm saying, is scan your overall mock very quickly. This should not take you more than 5 to 10 minutes, alright? So you have to take out this important data. First of all is your overall score. Second of all, you have to take out आपके हर सेक्शन में कितने मार्क्स आए हैं. देखो, हो सकता है कि तुम्हारा ओवरऑल स्कोर कम हो, बट मे बी यू वुड हैव किल्ड इन इंग्लिश और मे बी यू हैव डन सो वेल इन लीगल. सो आपको एक सेक्शनल एनालिसिस भी निकालना है वेरी क्विकली. एंड थर्डली, हाउ मच टाइम यू स्पेंट इन ईच सेक्शन. तो ये 3 चीज आपको स्कैन करके निकालनी है: ओवरऑल स्कोर, योर सेक्शनल स्कोर एंड योर टाइम स्पेंट इन ऑल द 5 सेक्शंस. और एक और बात, इस डेटा कलेक्शन के टाइम पे आपको एक और चीज का ध्यान देना है, दैट इज योर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज नथिंग बच्चों बट आपने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे और उनमें से करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं. सो उस शीट में भी मैंने एक्यूरेसी का फॉर्मूला डाला है, आप वहां से भी निकाल सकते हो. तो जब आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हो स्कैन मोड में तो आप अपनी एक्यूरेसी को भी कैलकुलेट करोगे, बी इट ओवरऑल एक्यूरेसी एंड इवन योर सेक्शनल एक्यूरेसी. दिस इज ऑल यू हैव टू डू. So, once you have collected your important data upon which you have to start your analysis, we enter step number 2 of our mock analysis, which is the E, examine.
सो एग्जामिन हम करने वाले हैं बट बहुत स्मार्टली करने वाले हैं, बिकॉज हम कंस्ट्रक्टिवली समझेंगे कि हमारी गलतियां आखिर हो क्यों रही हैं. सो फॉर दैट ईदर यू कैन जस्ट फॉलो द शीट दैट यू कैन टेक फॉर फ्री फ्रॉम माय व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन जस्ट मेंटेन अ नोटबुक जहां पे आपको अपने टाइप्स ऑफ एरर्स को कैटेगराइज करना होगा. दिस इज इमेंसली इंपॉर्टेंट. सो यहां पे हम अपने करेक्ट क्वेश्चंस को, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, तीनों को एग्जामिन करेंगे. कैटेगरीज ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं, लेकिन आपको चूज स्मार्टली करना होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आउट ऑफ द होल मॉक देयर वर 20 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. सो आपको मेंशन करना है दैट दीज क्वेश्चंस वर अनअटेम्प्टेड फॉर व्हाट रीजन. यू डिड नॉट हैव टाइम टू कम ओवर देयर, दैट यू डिड नॉट हैव टाइम टू रीच टू दोज क्वेश्चंस, या फिर आपने उन चीजों को या उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं था, या फिर आप वो क्वेश्चन को स्किप कर गए, आप देख ही नहीं पाए, या आपको कुछ भी आता नहीं था, या आप कंफ्यूज थे. व्हाट इज द रीजन? डोंट वरी, इस शीट में जो मैंने आपको पहले भी बताई है काफी सारे रीजंस लिखे हुए हैं. आपको उनमें से कोई एक रीजन पिक करना है, या कुछ बहुत स्पेसिफिक है तो आप खुद भी उसको लिख सकते हो. नाउ दिस वाज फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. नाउ यू मूव टू द इनकरेक्ट क्वेश्चंस. इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज श्योरली यू वेंट अहेड टू टेक दीज क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट देम, बट यू गॉट अ नेगेटिव मार्क. सो इनको तो जरूर देखना है कि यहां पे गलती हुई कैसे. तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से एनालाइज करोगे कि आपके इनकरेक्ट होने का रीजन क्या है. क्या आपने जल्दीबाजी में उसको मार्क किया था? क्या आपने आंसर तो ठीक मार्क किया था पर ओएमआर पे मार्क करने में गलती करी? क्या आपने बी की जगह सी मार्क कर दिया और एक सिली मिस्टेक की वजह से गलती हुई? या आपको कंफ्यूजन हो रहा था उस कॉन्सेप्ट पे ही और आपको कॉन्सेप्ट ही गलत पता था? There could be several reasons to it, right? So, या फिर टाइम की कमी थी, आपने जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन किया. There could be so many reasons. तो आपको वो भी मेंशन करना है, and then you also analyze कि आप जल्दीबाजी की वजह से कितने क्वेश्चंस गलत करते हो, आप लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से कितने क्वेश्चंस गलत करते हो, आप सिली मिस्टेक्स, करेक्ट इनकरेक्ट की कंफ्यूजन में कितने क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हो. दिस एक्चुअली इज द एनालिसिस बच्चों. एंड फाइनली यू मूव टू द राइट आंसर्स. मैं उन राइट आंसर्स की बात कर रही हूं जो आपने काइंड ऑफ तुक्के में किए थे. देखो बेटा, कभी कभी हम थोड़े से डाइसी होके कोई आंसर मार्क करते हो और अगर वो करेक्ट हो गया, खुश हो जाओ उस पर, बट उसे एनालाइज जरूर करो कि क्या मैंने जो लॉजिक यूज किया था वो एक्चुअल में सही लॉजिक था या मेरा तुक्का लगा था. अगर तुक्का लगा था तो एग्जाम में क्या पता ये तुक्का ना लगे, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक, राइट? सो आपको देखना होगा कि अगर मैंने इस टॉपिक पे तुक्का मारा है तो शायद ये टॉपिक मेरा 50-60% प्रिपेयर्ड है, मुझे इसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कॉन्फिडेंस से इस आंसर को अगली बार करेक्ट मार्क कर पाऊंगा. सो आई होप तुम अब समझ रहे हो कि हमें एग्जामिन करना कैसे है. हमें अपने तुक्के वाले करेक्ट आंसर्स को, इनकरेक्ट आंसर्स को और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, तीनों को एनालाइज करना है ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राउंड्स पे. इसके साथ साथ बच्चों तुम अपने टाइम को भी एनालाइज करोगे. रिमेंबर, जब हम स्कैन कर रहे थे तो हमने अपने टाइम को भी नोट डाउन किया था. तुम्हें ये भी एनालाइज करना है कि अगर तुम लीगल में सारे आंसर्स ठीक कर भी रहे हो बट उसको तुम 50 मिनट दे रहे हो तब वो ठीक हो रहे हैं, इट मीन्स कि तुम्हारी एक्यूरेसी की तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी टाइम की प्रॉब्लम है. मतलब तुम्हें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा फिंगर टिप्स पे लाना होगा. या फिर तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चंस इसलिए गलत हुए क्योंकि तुमने क्वांट सेक्शन को सिर्फ 5 ही मिनट दिए थे. तो हो सकता है कि तुम अगर अगली बार उसको 7 या 8 मिनट दे पाओ तो तुम्हारी एक्यूरेसी और बढ़ जाए. अंडरस्टैंडिंग? सो तुम्हें अपने फैक्चुअल एरर्स को और अपने जो कंस्ट्रक्टिव एरर्स हैं उनको एनालाइज करना है, और तुम्हें अपनी टाइमिंग को भी एग्जामिन करना है, और अगली मॉक में उसको थोड़ा सा चेंज करके देखना है, एंड देन यू विल फाइंड आउट व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू. ओके, सो अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो यहां तक तो ट्रस्ट मी, आपने मॉक एनालिसिस का सबसे बड़ा टास्क कर लिया है, बिकॉज एग्जामिन जो होता है वो सबसे मुश्किल और सबसे क्रिटिकल पोर्शन होता है. एंड विद दिस बच्चों वी कम ऑन स्टेप नंबर 3, दैट इज टू एक्ट अपॉन इट. अब एक्ट जब हमें करना है ना, हमें उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है. व्हाट डू वी नीड टू स्टॉप, what do we need to start and what do we need to continue. So for example, scan और examine करने के बाद हम इस conclusion पे पहुंचे हैं that I will stop giving more than 10 minutes to a passage. Do you understand this? That मैं किसी भी पैसेज पे या मैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे 10 या 12 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा. Let's take it for 1 passage or 2 passages for example, okay? तो something that you need to stop, alright? या फिर मैं क्वांट के सेक्शन को सबसे पहले नहीं करूंगा, मे बी बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर यू. सो यू हैव टू एनालाइज थिंग्स दैट यू नीड टू स्टॉप डूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट मॉक्स. सेकंड इज समथिंग यू नीड टू स्टार्ट. नाउ व्हेन यू नीड टू स्टार्ट समथिंग, आपको ये देखना होगा कि अगली बार से मैं जीके के क्वेश्चंस को पहले करूंगा, या फिर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द पैसेज सो दैट माय टाइम इज सेव्ड.
आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें आपको शुरू करनी होगी. एंड देर आर थिंग्स दैट यू माइट वांट टू कंटिन्यू. दैट फॉर एग्जांपल, फॉर मी टेकिंग द इंग्लिश आफ्टर CR वर्क्स बेटर एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट. सो आपकी जो स्ट्रैटेजी है बच्चों, इट विल बी अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स. यू माइट वांट टू स्टार्ट समथिंग, यू माइट वांट टू स्टॉप समथिंग, एंड यू माइट वांट टू कंटिन्यू समथिंग एज वेल. सो बेसिकली बच्चों, जो प्लान मैंने तुम्हें बताया है, दिस विल नॉट जस्ट मेक यू वर्क harder, it will make you work smarter as well. You will have a strategy to maintain. All right. With this, let me give you a quick recap. So mock analysis is a simple thing to do. We follow a 3-step formula, that is SEA. S में आप स्कैन करके अपना बेसिक डेटा कंप्लीट कर लोगे. E में आप एग्जामिन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा विच यू हैड कलेक्टेड. एंड एक्ट में यू विल हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है, क्या रोकना है और क्या कंटिन्यू करना है. गॉट इट? बट विद दिस, लेट मी गिव यू अ प्रो टिप. Always maintain a feedback loop or a feedback copy with yourself, जहां पे आप अपने सबसे मेजर मिस्टेक्स या सबसे मेजर अच्छी चीजों को नोट डाउन करोगे. एंड एवरी टाइम बिफोर यू टेक द नेक्स्ट मॉक, यू रीड इट दैट आई विल नॉट स्पेंड मोर देन 10 minutes ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई विल नॉट अटेम्प्ट quant section before the legal section. It could be anything. Or I will read the questions first and then the passages. So आप ये feedback loop prepare करोगे and you will have to understand बच्चों कि आपकी weaknesses और strengths क्या है. Let me tell you one last thing. जब आप examine कर रहे होते हो ना बच्चों, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी strong section कौन से हैं. Obviously, जिस section में आपका time कम लग रहा है और accuracy ज्यादा है, that is your strong section. उस section में भी आपके जिस topic के questions की सबसे ज्यादा accuracy आती है, वो आपका strong topic है और दूसरा topic आपका weak topic है. And this is how you will understand कि आगे आने वाले time में आपको किन 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, और किन टॉपिक्स पे आपको बस रिवीजन करते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे नहीं. सो आई होप बच्चों, मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला दिया है टू एनालाइज योर मॉक्स फ्रॉम नाउ ऑन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू मी अ फेवर एंड क्लिक द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इस तरह की टिप्स देने वाली. वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद अ कंप्लीट एकेडमिक प्लेलिस्ट जहां मैं एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लैट कवर करने वाली हूं. सो leave a comment, and yes, if you are agreeing with me and you want to restart your journey, just leave a good comment, like the video, subscribe to the channel, and yes, do not forget to join my WhatsApp group. ये sheet आपको वहीं पे मिलेगी. Good luck, take care everyone.